اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حکمت کی بات مومن کا گم شدہ مال ہے، وہ جہاں کہیں اسے پاتا ہے اپنا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ جس نے علم کا راستہ اختیار کیا اس نے جنت کا راستہ اختیار کیا۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخے پر۔ کھلاڑیوں کی ہمت افزائی کے لیے ہر وقت ٹیآرایس حکومت تیار۔ آرمور میں T20 کرکٹ ٹورنامنٹ کا PUC کمیٹی چیئرمین وارمر MLA جیون ریڈی نے کیا افتتاح۔ وہ مختلف علاقوں کا کیا دورہ۔ شہر میں مزید شراب کی دکانوں کی تعداد میں اضافے کے لیے محکمہ آبکاری کی جانب سے ٹینڈر جاری۔ 9 نومبر آخری تاریخ۔ 14 نومبر یوم تعلیم کے موقع پر مولانا ابوالکلام آزاد کی حیات زندگی کو عام کرنے کے لیے حرکیاتی قائد سید قیصر کی جانب سے تحریری مقابلوں کا انعقاد۔ ضلع کلکٹر نارائن ریڈی و ایڈیشنل کلکٹر و انچارج بلدیہ کمشنر چترا مشرا نے دورہ کرتے ہوئے کی ہمت افزائی۔ مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آف انڈیا کی سالانہ جائزہ اجلاس میں میسو نظام آباد اراکین کی شرکت۔ وہ مختلف امور پر کیا تبادلہ خیال۔ جکل MLA ہنومنت شنڈے نے 5 کلومیٹر پیدل چلتے ہوئے سڑک کی تعمیری کاموں کا لیا جائزہ۔ اب بڑھتی خبروں کی تفصیل کی جانب۔ آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی نے حلقے کا دورہ کرتے ہوئے انکاپور میں قائم کی گئی واٹر پلانٹ کا افتتاح عمل میں لایا۔ آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی نے حلقے کا دورہ کرتے ہوئے انکاپور گاؤں میں قیام عمل میں لائے گئے چھوٹے واٹر پلانٹ کا افتتاح عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ بہت ہی کم سرمایہ سے واٹر پلانٹ کا قیام عمل میں لا کر سطح غربت سے تعلق رکھنے والے غریب عوام کی خدمت کرنے والے انتظامیہ کو قابل مبارکباد پیش کی۔ اس پروگرام میں موضوع کے سرپنچ MPTC TRS قائدین و کارکنان و دیگر نے شرکت کی۔ పార్టీ కాంగ్రెస్ నాయకుల గురించి ఈరోజు దేశంలోనే ఆదర్శ గ్రామమైన అంకాపూర్ గ్రామం నమస్తే హనుమంతన కూర్చొని శేషం దేశంలోనే ఆదర్శ గ్రామమైన అంకాపూర్ గ్రామానికి వచ్చినాం। ఇక్కడ రైతులకు ఆదర్శ గ్రామం ఇది। యావత్ తెలంగాణలో గత చరిత్రలో ఎప్పుడు లేని విధంగా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ రాకున్న ముందు 2010-11 సమైక్య రాష్ట్రంలో 996 కోట్లు పెట్టి వడ్లు కొంటే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత 2014-15లో 3382 కోట్లు, 2015-16లో 3397 కోట్లు, 16-17లో 8089 కోట్లు, 2017-18లో 8535 కోట్లు, 2018-19లో 13630 కోట్లు, 2019-20లో 20384 కోట్లు పెట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు రైతు రాజుగా ఉండాలి, రైతు ఏడ్చిన రాజ్యం బాగుపడదు, ఎద్దేడ్చిన వ్యవసాయం బాగుపడదు, రైతులకు రైతు బంధు 43675 కోట్లు ఇస్తూ రైతులకు బీమా సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తూ 30,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి దాదాపుగా రైతులకు ఉచిత కరెంట్ ఇస్తూ ఇన్ని గొప్ప కార్యక్రమాలు మిషన్ కాకతీయ ద్వారా దాదాపుగా 25,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ప్రతి చెరువులలో నీళ్లు నిల్వ ఉండే విధంగా سماجی خدمت گزار قائد سید قیصر کی جانب سے یوم تعلیم کے موقع پر طلباء کو مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت سے واقف کروانے کے لیے تحریری مقابلوں کا انعقاد۔ ضلع کلکٹر نارائن ریڈی و ایڈیشنل کلکٹر و انچارج بلدیہ کمشنر چترا مشرا نے شرکت کرتے ہوئے طلباء و انتظامیہ کی ہمت افزائی کی۔ نیشنل گولڈ میڈل ایتھلیٹ حرکیاتی کانگریس قائد سید قیصر کی جانب سے جہاں ایک جانب عوامی مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کی جاتی ہے، دوسری جانب ان کی جانب سے ہر سال مجاہدین آزادی کی شہادت کی یاد تازہ کرنے کے لیے مختلف پروگرامز انجام دیے جاتے ہیں، اور اسی طرز پر ان کی جانب سے 14 نومبر یوم تعلیم کے موقع پر مولانا ابوالکلام آزاد کی حیات زندگی سے طلباء کو متعارف کرنے کی غرض سے مختلف مقابلہ جات کا طلباء کے لیے انعقاد عمل میں لایا جا
والا ہے۔ اور آج طلبہ کے لیے تحریری مقابلوں کا کریسنٹ ہائی اسکول قلعہ روڈ پر ان کی جانب سے انعقاد عمل میں لایا گیا، جس کا ضلع کلکٹر نارائن ریڈی و ایڈیشنل کلکٹر و انچارج بلدی کمشنر چترا مشرا نے دورہ کرتے ہوئے طلبہ کی ہمت افزائی کی۔ وہ مولانا کی شخصیت سے طلبہ کو واقف کروایا۔ وہ طلبہ کی ہمت افزائی کی اس تقریب میں سابقہ DEO محمد رشید، مولانا سید قاسمی، الہاریڈی اقلیتی اقامتی کالج پرنسپل سید مسعود، وہ ایڈوکیٹ ذیشان رضوی، ذمہ دار MSO، روشن ٹی وی انچارج نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے طلبہ کو مولانا آزاد کی حیات زندگی سے سیکھتے ہوئے اپنی شخصیت میں قابلیت پیدا کرنے، وہ انہی کی طرح ہر فن میں مہارت حاصل کرتے ہوئے مستقبل میں ایک باکمال شخصیت کے مالک بننے کے لیے ترغیب دی گئی۔ ہم نے اس ہندوستان کو اپنی قربانیوں سے آزادی دلائی، ہم نے اس وطن کو ہندوستان زندہ باد کا نعرہ لگا کے آزادی دلائی، انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگا کے ہم نے ہندوستان کو آزاد دلایا، ریشم رومال کے نعرے سے ہم ہندوستان کو آزادی دلائی، 1857 کو پیش کر کے ہماری جانوں کو نچھاور کر کے ہم ہندوستان کو آزادی دلائی۔ یہ قربانیوں سے ہمارا وطن، ہمارا ہندوستان، ہمارا بھارت، ہمارا ہند بنا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم ہر چیز میں آگے بڑھیں، ہر چیز میں آگے رہیں، علم کی دور میں ہم سب سے آگے رہیں، ہم کسی سے پیچھے رہنے والے نہیں ہیں۔ تو ہمارا ایک عزائم، ہمارا ایک گول ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہم کو کرنا چاہیے۔ جو بچے بغیر گول کے اگر ہم کام کرتے ہیں تو وہ کامیابی ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ دیکھیے پیارے بچوں، میں بالخصوص آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کو ہمیشہ اپنے زندگی سے تھامے رکھیے، والدین کی فرما برداری کریے۔ اپنی والدین ہماری جنت ہے، اگر ہم ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے تو اللہ ہمیں یہاں پر بھی ناکامیابی کرے گا اور آخرت میں بھی ناکامیابی ہوں گی۔ تو ہم اس کی عبادت کریں اور اپنے والدین کی عزت کریں، جواب نہ دیں، غصے میں نہ آ جائے، زبان کو نہ کھولے، بات کریں گی منہ سے زبان سے اگر ہم جواب دیں گے اپنے والدین کو۔ بنیادی سہولتوں کے بغیر ایک اسکول تو چل سکتا ہے، لیکن معیاری تعلیم، معیاری اساتذہ کے بغیر اسکول کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اولیاء طلباء سے گزارش ہے، آپ لوگ ایسے اسکولز میں اپنے بچوں کا داخلہ کروائیں جہاں پر بچے اپنی شناخت اور اپنے عزائم مکمل کر سکیں، اور ایسے اسکول سے دور رہیں جہاں پر ہمارے بچے ہماری شناخت کو اور ہمارے مذہب کو دور کرتے ہیں۔ دوسری بات، یہاں پر اساتذہ ٹیچرز بھی ہیں، اصل پروگرام آپ لوگوں کا ہے لیکن ٹیچرز بھی ہیں۔ تو اساتذہ صاحبین سے میری گزارش ہے، دیکھیے یہ بہت ہی مقدس پیشہ ہے، ہم ریٹرنز کے بارے میں نہیں سوچیں گے، ریٹرنز جو آتے ہیں وہ جو ہمارے مقصود میں ہے ڈیفینیٹلی آتا، لیکن یہ سمجھیے جتنا بھی ہمیں ملا اللہ تعالیٰ بڑی بڑی آزادی دلائی۔ یہ قربانیوں سے ہمارا وطن، ہمارا ہندوستان، ہمارا بھارت، ہمارا ہند بنا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم ہر چیز میں آگے بڑھیں، ہر چیز میں آگے رہیں، علم کی دور میں ہم سب سے آگے رہیں، ہم کسی سے پیچھے رہنے والے نہیں ہیں۔ تو ہمارا ایک عزائم، ہمارا ایک گول ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہم کو کرنا چاہیے۔ جو بچے بغیر گول کے اگر ہم کام کرتے ہیں تو وہ کامیابی ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ دیکھیے پیارے بچوں، میں بالخصوص آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کو ہمیشہ اپنے زندگی سے تھامے رکھیے، والدین کی فرما برداری کریے۔ اپنی والدین ہماری جنت ہے، اگر ہم ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے تو اللہ ہمیں یہاں پر بھی ناکامیابی کرے گا اور آخرت میں بھی ناکامیابی ہوں گی۔ تو ہم اس کی عبادت کریں اور اپنے والدین کی عزت کریں، جواب نہ دیں، غصے میں نہ آ جائے، زبان کو نہ کھولے، بات کریں گی منہ سے زبان سے اگر ہم جواب دیں گے اپنے والدین کو تو والدین کو غصہ آ جاتا ہے۔ دیکھو بہت بڑی مشکلوں سے بہت سے والدین اہتمام کیا گیا ہے ایسے ریٹنگ کمپٹیشن کا، جس شخصیت کے بارے میں رکھا گیا ہے ان کی شخصیت و حیات زندگی سے طلباء کو متاثر کرنے کے لیے یہ ایسے ریٹنگ کمپٹیشن رکھا گیا ہے تاکہ طلباء ان کی شخصیت سے سیکھے۔ وہ ایک عالم دین تھے، آج ہمارے پاس ذہن یہ ہے
कि अगर आप दीनी तालीम सीखोगे तो दुनिया में पीछे हो जाओगे, सिर्फ नमाजों के हद तक रह जाओगे। तो इस चीज़ को जुटाने के वास्ते ये शख्सियत का आज तारुफ रखा गया है। वो सहाफ़ी थे। आज दुनिया में यही भी कहा जाता है कि अगर सहाफ़ी है तो सहाफ़त एक ऐसा पेशा है, वैसा पेशा है, उसको नाम रखते हैं। गर्ज दुनिया में हर चीज़ को नाम रखा जाता है जब तक उस चीज़ में आप अपनी शनाख्त ना बना ले। तो आज जो हम यहाँ पर जमा हुए हैं, जो एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन रख रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ इनाम देना या फिर किसी की शख्सियत की तारीफ नहीं है। इसका मकसद ये है कि आपके अंदर खुद एतमादी पैदा की जाए। यही मकसद है कि इन कॉम्पिटिशन्स को मुनक़िद किया जाता है। यही मकसद है कि इंतज़ामिया आपके जहनों में वो बात कायम करना चाहता है जो कौम को नया सूरज दे सके, नया कायद दे सके, नया लीडर दे सके, कौम को आगे लेके जाने के लिए नए रहनुमा तैयार किया जा सके। आज हमारी कौम में इतनी बड़ी खला आ चुकी है, हम हर शोबे में पीछे हो रहे हैं। इसकी एक ही वजह है कि मायूसी। जहाँ पर कुरान फरमाता है, खुदा फरमाता है कि मायूसी कुफ्र है, वहीं पर कई लोग हर रोज हमें ये कहते हैं सुबह से लेकर शाम तक ये काम नामुमकिन है। एमएसओ की कौमी इजलास में निजामाबाद एमएसओ अरकान की शिरकत व मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल। वो नौ मुंतखबा कौमी सदर मोहम्मद मुदस्सिर को दी मुबारकबाद। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की जानिब से कौमी सतह पर मुनक़िदा तरबियती व जायजा इजलास जो इस माह की 6 व 7 तारीख को उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में मुनक़िद किया गया। इस इजलास में जिले निजामाबाद के सीनियर अराकीन व बिहेवियर थेरेपिस्ट मोहम्मद शहीर अहमद व नौजवान सहाफ़ी शेख इमरान ने शिरकत करते हुए एमएसओ निजामाबाद की खिदमत से पूरे हिंदुस्तान की मेंबरान को वाकिफ करवाया और मुस्तकबिल में एमएसओ हिंदुस्तान में अमन व अमान के अलामत बनने व गुरबा व मुस्तहिक़ीन का मुस्तकबिल में सहारा बनने के लिए काम करने की अपील की। इस जायजा इजलास में मुल्क के हर जिले व रियासत से एमएसओ मेंबरान ने शिरकत करते हुए तंजीम की तरक्की के लिए अपने ख्यालात का इजहार किया। इसी तरह इस इजलास में तमाम की रजामंदी से एमएसओ कौमी सदर की हैसियत से मोहम्मद मुदस्सिर को मुंतखब किया गया। तो अभी और एक चीज़ कि अपन अपने लोकल एरिया में ये भी कर सकते हैं कि गवर्नमेंट के स्कीम्स बहुत सारे अपने लोगों को पता ही नहीं है, जो कि यूज़ भी नहीं करते, स्पेशली माइनॉरिटी के लिए रखे हुए रहते हैं, बट मालूम नहीं, अवेयरनेस है नहीं, तो आते भी चले भी जाते। तो अपना काम ये है कि हर यूनिट में कुछ बंदे उस चीज़ पर फोकस करें कि गवर्नमेंट से क्या स्कीम आई, उसको कैसा इम्प्लीमेंट करना या कैसा पब्लिक में यूज़ देना। अगर कुछ मालूम हुआ उसके लिए सोशल व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दीजिए एमएसओ जनरल, उसमें कोई भी ऐड हो सकते हैं, मतलब जो अपने एरिया के है, तो वो एरिया में उसका अवेयरनेस, जैसे हमारे यहाँ पे अरशद भाई एक एजुकेशन का भी चलाते हैं एमएसओ में, तो कभी भी कौन सा भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया, जॉब का नोटिफिकेशन आ गया, तो वो चीज़ क्या करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन पहले ही ग्रुप में भेज देते हैं, जिससे क्या होता है कि किसी को भी हेल्प हुई तो वो लोग एक बार उनको मालूम हुआ कि एमएसओ में टच करने के बाद मालूम होता, तो कोई कौन सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख रहे हैं, उनको डेट नहीं मालूम या पैटर्न नहीं मालूम, तो वो एमएसओ में किसी न किसी को कॉल करके पूछ लेते हैं कि भाई इसकी डेट आई क्या, कुछ मालूम है क्या। तो इससे क्या है, एजुकेशन पे बहुत अच्छा फोकस होता। और हर समर के बाद जैसे स्कूल्स रीओपन होते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, स्लम एरियाज, जो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में स्लम एरियाज होते हैं जहाँ पे एजुकेशन पे काम नहीं होता, वो सारे बच्चे 5th 2nd 7th के बाद ड्रॉप कर देते हैं, तो वैसे बच्चों के पास जाके घरे घर जाके पेरेंट्स को मोटिवेट करके उनको वापस स्कूल्स में, हॉस्टल्स में, गवर्नमेंट के बहुत सारे होते हैं, वहाँ पे एडमिशन दिलाते हैं, उनकी एजुकेशन के लिए आगे काम करते हैं। और एमएसओ वहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि कुछ कॉलेजेस में इतना भी है कि कुछ एक 5-10 बच्चे हर साल एमएसओ के थ्रू जाके फ्री में पढ़ सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। एमएसओ से हम बोल रहे हैं कि मतलब चुनेंगे भी ऐसे बच्चे हैं कि जो उनका कॉलेज में कॉलेज का नाम भी रोशन करें। जो गरीब बच्चे हैं, जो कि टैलेंटेड है बट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, वैसे बच्चों को चुन के कॉलेज में जाके डिमांड करते हैं। ऐसा भी नहीं कि वो मतलब एमएसओ का पावर है वहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है एडवोकेट भी है उन्होंने, और मीडिया में भी है, दूसरे सीनियर मेंबर्स बहुत सारे बिजनेस में है, मार्केट के लोग हैं, तो पावर अच्छा है पॉलिटिकल भी। और ये भी करें कि हम लोग के एमएसओ से रिलेटेड जो बंदे रहते हैं उनको काउंसलर, यहाँ पे बहुत सारे काउंसलर के इलेक्शन पार्षद सभा, तो उसमें भी क्या करें, एमएसओ के रिलेटेड एमएसओ से जो पॉजिटिव इमेज रखते, वैसे 4-5 बंदों को हम लोकली सपोर्ट करें।
लोकली सपोर्ट करके उनको जिता भी दिए, तो उससे क्या हो रहा, हमारी आवाज़ और अच्छे से, म्यूनसिपल में भी कुछ काम है तो ये 4-5 बंदों को आगे रख के इनसे हमारा काम भी निकलवा सकते हैं। तो ऐसे चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, बस आप पॉजिटिवली रहें। कैसा होता है, रास्ता बहुत निकलता है, मेन चीज़ पॉजिटिव रहना। अपन स्टेप लेंगे तो मालूम होता पॉजिटिव होना, नेगेटिव बाद में हो। पहले स्ट्रॉन्ग माइंड रखिए, बहुत सारी इजी चीज़ें देख के फोकस करके काम करें तो इंशाल्लाह एमएसओ का नाम और आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। आज रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपनी लड़की की शादी तकरीब में मदऊ करने के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एनवी रमन्ना, रियासत तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस सतीश चंद्रा शर्मा के अरकान खानदान को दावतनामा किया। हमारे रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने इनके अपनी बेटी की शादी तकरीब में मदऊ करने के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर के सरकारी रिहाइशगाह में मुलाकात करके इनके अफराद खानदान को दावतनामा हवाले किया। वो इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एनवी रमन्ना के अरकान खानदान को दावतनामा देने के अलावा रियासत तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस सतीश चंद्रा शर्मा के अफराद खानदान को दावतनामा हवाले करते हुए शादी तकरीब में यकीनी तौर पर शिरकत करने व नए जोड़े को दुआओं से नवाजने की ख्वाहिश की। आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका, एमएस की जानिब से मुफ्त कामती कोचिंग के लिए इंटरेस्टेड। मिस्टर तारिक अंसारी, रियासती सेक्रेटरी टीआरएस व डायरेक्टर गौतमी कॉलेज ने अपने एक प्रेस नोट में बताया कि हमारे मुल्क में इस वक्त मुस्लिम आईएएस आईपीएस अमले की बहुत ज्यादा जरूरत है, लिहाजा इसके लिए तालीमी मैदान में एक ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि एक मुसलमान अक़वाम आलम में और हमारे अपने मुल्क में तरक्की कर सके और मुल्क व मिलत की खिदमत कर सके और अपने मुआशरे में नाम पैदा करे। अल्हम्दुलिल्लाह एमएस एजुकेशन अकेडमी तालीमी मैदान में अपनी गरा कदर खिदमत का सिलसिला जारी रखे हुए है। गुज़िश्ता 3 साल से यूपीएसई के उसूल के लिए तैयारी करवा रहा है ताकि आला मनसब पर कौम व मिलत की नुमाइंदगी हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारे इस इदारे से 2 तुलबा फैजान अहमद रैंक 58 और 2 हारिस समेत रैंक 270 आईएएस मुंतखब हो चुके हैं। इसके लिए एक इंट्रेंस टेस्ट रखा जा रहा है। जो लोग इस इंट्रेंस टेस्ट में कामयाब होंगे इनको तमाम तर सहूलतों के साथ तालीम व क़याम व ताम मुफ्त दी जाएगी इंशाअल्लाह। लिहाजा तमाम हज़रात से गुजारिश है कि वो नौजवानों को आगे लाए और सरप्रस्त इस सिलसिले में मुतवज्जे हों। एमएस एजुकेशन अकेडमी की वेबसाइट पर अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाएं और इंट्रेंस टेस्ट 7 नवंबर 2021 को मुनक़िद होगा। तालीमी लियाकत किसी भी मज़ामीन से ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। उम्र 21 साल से 27 साल के दरमियान होनी चाहिए। मज़ीद तफ़सीलात के लिए फ़ोन नंबर 9030004542 और निज़ामाबाद इंचार्ज तारिक अंसारी, डायरेक्टर गौतमी ग्रुप ऑफ डिग्री कॉलेजेस निज़ामाबाद, सेल नंबर 9848454786 और मिस्टर सुभाष राव गौतमी पीजी कॉलेज प्रिंसिपल से सेल नंबर 9949329687 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। इस्लाम अमन व सलामती का मजहब है। इस्लामी तालीमात को जिंदगी में लाकर दुनिया व आखिरत खुशगवार बनाए। जमीयतुल रामारेड्डी की इंतखाबी नशिस्त अलहाज सैयद अजमत अली, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल कामारेड्डी का खिताब। मोहम्मद हमजा, सेक्रेटरी जमीयतुल हल्के मदीना कामारेड्डी की इत्तला के मुताबिक आज 7 नवंबर 2021 बरोज़े इतवार सुबह 10 बजे दिन कामारेड्डी जिले के रामारेड्डी मंडल की इंतखाबी नशिस्त काशिफ नगर मस्जिद उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में बसदारत मोहतरम हाफिज मोहम्मद फ़हीमुद्दीन मुनीरी सदर जमीयतुल कामारेड्डी मुनक़िद हुआ। इस इजलास से खिताब करते हुए अलहाज सैयद अजमत अली, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल कामारेड्डी ने कहा कि इस्लाम अमन सलामती का मजहब, इस्लाम पर चलने से ही दुनिया आखिरत में सुरखरू हो सकते हैं। जमीयतुल के सदर मोहतरम हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब मदजिल्लाह इस वक्त मुल्क में प्यार व मोहब्बत की फिजा को आम करने के लिए मुस्तकिल कोशा है। मुल्क के गोशे गोशे में जमीयत के मेंबरान इस खिदमत में लगे हुए हैं। मौलाना नज़ीरुल्लाह कासमी सदर जमीयतुल मंडल कामारेड्डी ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक व जमीयत की खिदमत का तारुफ पेश किया। रामारेड्डी मंडल की कारगुजारी ली। अल्हम्दुलिल्लाह बेशतर मौज़ूआत में मुकम्मल मेंबर साजी हो गई। आज मंडल रामारेड्डी के लिए जनाब मोहम्मद हबीबुद्दीन साहब को सदर, जनाब मौलाना मोहम्मद अब्सार हबीबी साहब इमाम व खतीब मस्जिद उमर फारूक को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया, जबकि नाबिन सुदूर के लिए हाफिज मोहम्मद इमरान साहब रेडीपेट और जनाब शेख गौस पाशा साहब रनगमपेट। ऐसे ही सेक्रेटरीज के लिए जनाब मोहम्मद सादुल्ला साहब उपलवाई और जनाब बाबा साहब रेडीपेट और खाजिन की हैसियत से जनाब मोहम्मद आसिफ साहब को तय किया गया है। रामारेड्डी मंडल से मुतालिक हर मौजे के अहबाब को मेंबरान
ज़िमरान में शामिल किया गया। हाफिज मोहम्मद शकील साहब अनारिम की खिरात कलाम पाक से इजलास का आगाज हुआ। हाफिज मोहम्मद इमरान साहब ने हदिया नात पेश किया। मौलाना नजीरुल्लाह कासमी की दुआ पर इजलास मुकम्मल हुआ। इतराफ इकनाफ के मौज़ूआत के जिम्मेदारान कसीर तादाद में इंतखाबी अमल में हिस्सा लिए। आर्गन रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने साबिक एमपी पोतू नरसैया की दफ्तर की जानिब से क़याम अमल में लाए गए काव्या हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में लाया। आर्मूर शहर की महालक्ष्मी कॉलोनी में साबिक एमपी पोतू नरसैया की दफ्तर की जानिब से क़याम अमल में लाए गए काव्या हॉस्पिटल में मेहमान खुसूसी के तौर पर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने शिरकत करके काव्या हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में लाकर कहा कि हल्के की मुकामी अवाम को मियारी व तशफ़ी बख्श इलाज व मुआलजा फराहम करने की ख्वाहिश के इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल काउंसलर्स व दीगर मौज़े से वाबस्ता टीआरएस कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। स्पोर्ट्स से मुलाकात खिलाड़ियों को खुसूसी रिजर्वेशन फराहम करके रियासती हुकूमत की जानिब से भरपूर मदद फराहम करने का पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने किया इज़हार। आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने तूफानी दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर शहर के मिनी स्टेडियम में क्रेन वंशी T10 क्रिकेट मेमोरियल टूर्नामेंट का इफ्तिताह अमल में लाया और खिलाड़ियों से मुखातिब होकर कहा कि गुज़िश्ता कई मरतबा मुनक़िदा T10 और T20 क्रिकेट टूर्नामेंट से वाबस्ता खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई करने के लिए इंतजामी की खदमात को काबिल सताइश करार देते हुए कहा कि स्पोर्ट्स में ज़िले व रियासती सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके कौमी सतह पर उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को रियासती हुकूमत की जानिब से मुलाजिमत के मौके दस्तयाब होने का इजहार किया। ఎక్కడ లేని విధంగా చాలా బ్రహ్మాండంగా 2 ఇండోర్ స్టేడియంలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత ₹1.5 కోటి ఇండోర్ స్టేడియంకు మంజూరు చేయడం జరిగింది। ఇండోర్ స్టేడియంలు కూడా పూర్తి స్థాయిలో కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయినాయి। అవే కాకుండా క్రీడాకారులకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత అనేక ప్రోత్సాహకాలు లభిస్తూ ఉన్నాయి। ఒకవైపు క్రీడాకారులకు రిజర్వేషన్లతో పాటు ప్రతి నియోజకవర్గంలో మినీ స్టేడియంలలో ఇండోర్ స్టేడియంలకు ₹1.5 కోటి వారితో పాటు మనకు అదనంగా డిగ్రీ కళాశాలలో కూడా ఒక క్రికెట్ స్టేడియం కూడా గతంలో మనం మంజూరు చేయించుకున్నాం। మరి అది ఇంకా పూర్తి కావాల్సి ఉంది। కాబట్టి ఈరోజు ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఈ యొక్క వీకే మెమోరియల్ వాళ్ళు నిర్వహిస్తున్నటువంటి మరి నిర్వహణ సౌద్ జాబ్రీ మరియు భరత్ అయాన్ వారికి ప్రత్యేకంగా ప్రవీణ్ వారికి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను। जिले का अमरेली जुक्का रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने अवामी नुमाइंदों के हमरा पैदल दौरा करते हुए पिद्दा पड़गी गांव तक कंटाती तक डबल लाइन रोड का लिया जायजा। जिले का अमरेली जुक्का रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने अवामी नुमाइंदों के हमरा पैदल दौरा करते हुए पिद्दा पड़गी गांव से कंटाती देहात तक 5 किलोमीटर पर मबनी डबल रोड जो कि 12.50 करोड़ मसारफ से तामीर करदा रोड का जायजा लिया। इस मौके पर इनके साथ एमपीपी एएमसी चेयरमैन साया गौड़, मधुराव देसाई पाटिल, टीआरएस मंडल कायदीन व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने कहा कि जुक्कल हल्का असम्बली के 6 मंडलों में डबल लाइन रोड को 250 करोड़ रुपए की मालियती रकम से तामीर करने का इजहार किया। ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో రోడ్లన్నీ బ్రహ్మాండంగా ప్రతి గ్రామానికి మరి మంచి రోడ్లు వేయించి మరి ప్రజల కష్టాలన్నీ కూడా దూరం చేయడం జరుగుతుంది। కాబట్టి ఈ సందర్భంగా ఇన్ని రోడ్లు మంజూరు చేసి మరి మా ప్రజల కష్టాలు దూరం చేసినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి సంబంధిత మంత్రులందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా జుక్కల్ నియోజకవర్గ ప్రజల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు మరి ఏడిగి నుండి గుల్లాకు ఆ కాంట్రాక్టర్ నిర్లక్ష్యంతో చాలా రోజులుగా ఇబ్బందిగా ఉన్నటువంటి రోడ్డు మరి బీటీగా మార్చడం జరిగింది। ఆ సందర్భంగా మరి ప్రజల సంతోషాన్ని చూద్దాం, ఆ రోడ్డు ఏ విధంగా వేశారని చూద్దామని। एड़पली मंडल में कांग्रेस पार्टी ने मौजे पोशराम में मौजे कमेटी व बूथ कमेटी इंतखाब अमल में लाया। एड़पली मंडल पोशराम देहात में कांग्रेस पार्टी की जानिब से मौजे कमेटी व बूथ कमेटी का इंतखाब अमल में लाया गया। इस मौके पर मंडल के सदर पुलिस श्रीनिवास, कांग्रेस पार्टी कायद निरादी रवि ने खिताब करते हुए कहा कि पोचराम गांव में मौजे की कमेटी और बूथ कमेटी को मुंतखब करने का इजहार करते हुए बताया कि इनकी तफसीलात कुछ इस तरह से मौजे कमेटी के सदर के तौर पर जक्कू चिट्टी बाबू, नायब सदर की हैसियत से प्रमोद रेड्डी, बी गंगाराम, जनरल सेक्रेटरी के तौर पर चिन्ना लक्ष्मैया व दीगर का इंतखाब अमल में लाया गया। जेडपी चेयरमैन विठल राव ने आईएमए के रियासती काउंसिल मेंबर के तौर पर डॉक्टर बाबू रेड्डी का इंतखाब अमल में लाने पर शानदार
शानदार पैमाने पर तहनीत पेश की। ZP चेयरमैन विठल राव ने IMA की रियासती कौंसिल मेंबर के तौर पर डॉक्टर बापू रेड्डी का इंतखाब अमल में लाने पर शानदार पैमाने पर तहनीत पेश की गई। इस प्रोग्राम में KCR सेवा दल जिले सदर रमन्ना राव, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन मानकेश्वर राव, श्याम राव, अंजया, शेखर रेड्डी, शेखर राज, नीलम रेड्डी, गंगोनी राजेश्वर, नागा राव, रघु व दीगर ने शिरकत की। सदर नशीन जिले प्रजा परिषद विठल राव ने ZP दफ्तर में बिनोला की ऋत्विका ने गुज़िश्ता माह बेंगलुरु में मुनक़्क़िदा कौमी सतह के सब जूनियर स्विमिंग मुकाबला जात में शिरकत करके ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने पर शानदार पैमाने पर तहनीत पेश की। सदर नशीन जिले परिषद विठल राव ने ZP दफ्तर में बिनोला गांव से ताल्लुक रखने वाले प्रकाश राव की दोख्तर ऋत्विका गुज़िश्ता माह बेंगलुरु में मुनक़्क़िदा कौमी सतह के सब जूनियर स्विमिंग मुकाबला जात में शिरकत करके ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने की बिना पर शानदार पैमाने पर तहनीत पेश की। इस प्रोग्राम में कोच महपाल रेड्डी, KCR सेवा दल के जिले सदर रमन्ना राव, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन मानकेश्वर राव, श्याम राव, अंजया, शेखर रेड्डी, शेखर राज, नीलम रेड्डी, गंगुनी राजेश्वर, నాగారావు, రఘు దిగనే షిర్కత్ కి నేషనల్ లెవెల్లో కూడా ఆడి ఎన్నో పథకాలు సంపాదించిన రిత్వికకు ఈ సందర్భంగా మేము నిజామాబాద్ జిల్లా తరఫున మా KCR సేవాదళం జిల్లా అధ్యక్షులు రామారావు వారి బృందం తరఫున డాక్టర్ బాబురెడ్డి తరఫున ఆమెకు శుభాకాంక్షలు, శుభాభినందనాలు తెలియజేస్తూ మరి 2018 నుంచి 21 వరకు 3 సంవత్సరాల్లో మరి ఎన్నో పథకాలు సాధించిన రిత్విక మరి గోల్డ్ మెడల్ కానీ, సిల్వర్ మెడల్ కానీ, మరి రజిత పథకాలు కానీ ఒక 19 గోల్డ్ మెడల్ పథకాలు, ఒక 5 వెండి పథకాలు, 4 रजत। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर जवाबी प्रयास की जांच का अमल सुस्त रफ्तारी का शिकार, लेक्चरर्स की ड्यूटी से गैर हाजिरी, खानगी कॉलेजेस इंतजामिया के रवैये पर सैयद उमर जलील की बरहमी। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर इम्तिहानात के जवाबी बयास की जांच करने के मामले में ड्यूटी मुख्तस करने के बावजूद लेक्चरर्स गैर हाजिर हो रहे हैं। बिलखुसूस खानगी कॉलेजेस के लेक्चरर्स बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अहकामात को नजरअंदाज कर रहे हैं। बावसूख जराए से पता चला है कि कॉलेजेस इंतजामिया की जानिब से लेक्चरर्स को रिलीव नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो ड्यूटी से रुजू नहीं हो रहे हैं, जिसके नतीजे में जवाबी बयास की जांच सुस्त रफ्तार से चल रही है। हाल ही में इंटर फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात का अमल मुकम्मल हुआ है, जिसके बाद इंटर बोर्ड की जानिब से जवाबी बयास की जांच का आगाज किया गया है। सरकारी और खानगी कॉलेजेस के लेक्चरर्स के लिए ड्यूटी अलॉट की गई है, ताहम कई लेक्चरर्स ड्यूटी से रुजू नहीं हो रहे हैं। चंद मराकज पर पर्चों की जांच के लिए 35% से कम हाजिरी दर्ज हो रही है। बिलखुसूस हैदराबाद और जिले रंगारेड्डी में 35-40% लेक्चरर्स ने रिपोर्ट किया है। अजला, महबूब नगर और वरंगल में हाजिरी का तनासुब 70-80% है। बेशतर अजला में हाजिरी का तनासुब कम होने की इत्तला है, जिसका सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सैयद उमर जलील ने सख्त नोट लिया है। इन्होंने इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स और नोडल ऑफिसर्स का ऑनलाइन इजलास तलब करते हुए जवाबी बयास की जांच के मराकज़ सतह पर हाजिरी के तनासुब का जायजा लिया है। अहदेदारों ने इन्हें बताया कि ग्रेटर हैदराबाद के बमशमूल चंद अजला के खानगी कॉर्पोरेट कॉलेजेस की जानिब से क्लासेस के इनेकाद का बहाना करते हुए लेक्चरर्स को ड्यूटी पर रवाना न करने की शिकायत की है। खानगी व कॉर्पोरेट कॉलेजेस के रवैये पर सैयद उमर जलील ने बरहमी का इजहार किया है। पचरा नरकोड़ा गांव न्यू मदर टेरेसा एसोसिएशन के तौसीफ से संजीव हॉस्पिटल आलमपुर के माहिर डॉक्टर्स के जरिए मेगा तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाकर मुफ्त अद्वियात की फराहमी अमल में लाई गई। पचला नरकोड़ा देहात में न्यू मदर टेरेसा एसोसिएशन के तौसीफ से संजीवनी हॉस्पिटल आलमपुर के माहिर डॉक्टर्स के जरिए मेगा तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाकर मुफ्त अद्वियात की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर सरपंच श्वेता गंगारेड्डी ने शिरकत करके मदर टेरेसा के मेम्बरान व डॉक्टर्स की शालपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। इस मौके पर सरपंच श्वेता गंगारेड्डी ने कहा कि आलमपुर में वाक़ई मशहूर मारूफ हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम देने वाले माहिर डॉक्टर्स के जरिए गांव में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाने पर खुशी का इजहार करके वो इनकी फ्राहम करदा खिदमत को काबिल सिताइश करार दिया। इस प्रोग्राम में न्यू मदर टेरेसा एसोसिएशन मेम्बरान एन घंटी प्रताप, दोन घंटी प्रमोद, महेश गंगाधर, सुमन, क्रांति, पंकज व दीगर ने शिरकत की। आरटीसी बस किरायों में इजाफे के लिए 4 तजावीज तैयार, किलोमीटर पर 25 पैसे के इजाफे से सालाना 750 करोड़ की आमदनी की तौक़ीद।
तेलंगाना में सरकारी रोड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वालों को जल्द ही नए बोझ का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आरटीसी बसों के टैक्स की शरहों में इजाफे की फाइल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को रवाना कर दी गई है। इनकी मंजूरी के साथ ही टिकटों की नई कीमतों पर अमल होगा। इस खुसूस में गौर के लिए एक इजलास खैरताबाद में रोड ट्रांसपोर्ट के सदर दफ्तर में मुनक़िद हुआ, जिसकी वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार की सदारत की। अजय कुमार ने आरटीसी बसों के टिकट्स की कीमतों में इजाफे का जायजा लिया। ओहदेदारों ने इस खुसूस में बाज़ अहम तजावीज़ भी पेश किए। बस के टिकट की कीमत फी किलोमीटर 25 पैसे, एक्सप्रेस बसों के टिकट्स की शरह में 30 पैसे फी किलोमीटर इजाफे की तजवीज पेश की गई। सिटी आरटीसी बसों में सफर करने वालों को फी किलोमीटर 25 पैसे इजाफा देने पड़ सकते हैं। मेट्रो एक्सप्रेस बसों के किरायों में 30 पैसे का इजाफा करने की तजवीज है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को ये तजावीज रवाना की गई है। इनकी मंजूरी के बाद ही इस पर अमल होगा। शहर में मौजूद 91 वाइन शॉप के मुंजमिला ज़ायद 11 वाइन शॉप का क़याम अमल में लाने के टेंडर का महकमे आबकारी ओहदेदारों ने किया ऐलान। महकमे आबकारी के ओहदेदारों ने जिले में वाइन शॉप की तादाद में मजीद इजाफे के तहत शहर में मौजूद 91 वाइन शॉप के मुजमिला ज़ायद 11 वाइन शॉप का क़याम अमल में लाने का इजहार करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से 2021-23 के तहत वाइन शॉप से मुतालिक मंजूरी के लिए अहकाम जारी करते हुए पहली मरतबा वाइन शॉप के लिए रिजर्वेशन मुख्तस किया जा रहा है, जो कि इस तरह से है। गौर को 15%, एससी को 10%, एसटी को 5% वाइन शॉप से मुख्तस करते हुए मकतूब जारी किया गया। बरक़ी शराह में आइंदा साल से इजाफा यकीनी। पेट्रोल और डीजल की इजाफी बोझ के बाद अवाम को बरक़ी का शौक। हर दिन किसी न किसी शोबे में किसी न किसी शय की कीमत में इजाफा होता जा रहा है। रियासती अवाम पर एक और इजाफी बोझ बढ़ने वाला है। यकीनन इस बात से शहरियों को धक्का लगेगा, लेकिन ये शौक आम शौक नहीं बल्कि बरक़ी की इजाफी कीमतों का बरक़ी शौक होगा। इम्कान है कि बरक़ी सरबराही कंपनियां व इदारे आइंदा साल से बरक़ी कीमतों में इजाफा कर सकती है। कीमतों में फी यूनिट इजाफे के लिए तमाम तर तैयारियां कर ली गई हैं और वजूहात को भी बताया जा रहा है। इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि फी यूनिट 2.1 रुपये था 2.34 रुपये फी यूनिट सरचार्ज में इजाफा किया जाएगा। इस मौजूदा सिफारिश पर नवंबर 23 तक एतराजात हासिल किए जाएंगे और माह दिसंबर में इजाफी कीमतों का ऐलान मुमकिन है। इसके अलावा सनतों से बरक़ी 372.51 करोड़ रुपए वसूल करने का डिस्काम ने फैसला किया है और ये सरचार्जेस ओपन एक्सेस में खरीदी जाने वाली बरक़ी पर वसूल किए जाएंगे। कीमतों में इजाफे का सबब डिस्काम अपने बोझ को कम करने की खातिर अवाम पर इजाफी कीमतों का बोझ डाल रहा है। चूँकि इन दोनों रियासतों बरक़ी शोबे से बरक़ी की खरीदारी के बजाय रास्त तौर पर आम मार्केट से ओपन एक्सेस तरीक़ेकार पर बरक़ी की खरीदारी की जा रही है। डिस्काम से कम कीमत पर बरक़ी फरोख्त करने वाले इदारों से ओपन एक्सेस पर चंद बड़ी सनतें बरक़ी खरीदारी कर रही हैं। इस ज़िम्मन में साल 2021-22 माली साल में ओपन एक्सेस इस्तिफादा कुनगान में 372.51 करोड़ रुपए जायद सरचार्ज के तौर पर वसूल किए जाएंगे और ओपन एक्सेस पर खरीदे गए हर यूनिट पर 2 रुपए तक 2 रुपए 30 पैसे तक जायद वसूल किए जाएंगे। देरीना मुआहदात के जरिए साल 2021-22 के पहले 6 माह में 8,210.81 मेगावाट और दूसरे 6 माही में 8,574.88 मेगावाट लास्काम के यहाँ दस्तियाब रहना है, लेकिन ओपन एक्सेस के सबब पहले 6 माह में 171.89 मेगावाट और दूसरे 6 माह हिस्से में 219.76 मेगावाट बरक़ी डिस्काम फरोख्त नहीं कर पाया है, जिसके सबब बरक़ी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस के नुकसानात को पूरा करने के लिए ओपन एक्सेस के जरिए खरीदी गई बरक़ी पर सरचार्ज वसूल करने का फैसला किया गया है। रेडियंट कंपनी की जानिब से गरीब के इलाज के लिए तिब्बी आलात का अतिया करने पर जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया खुशी का इजहार व इनकी खिदमत की सताइश। जिले निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले रेडियंट कमेटी के जेर निगरानी में रेड क्रॉस तंजीम को DSP मशीन हवाले करने के प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने शिरकत करते हुए कहा कि शहर की मशहूर मारूफ तिजारती तंजीम रेडियंट कंपनी की जानिब से 30 लाख मालियती रकम से सिंगल डोनर प्लेटलेट SDP को रेड क्रॉस को अतिया देना काबिल मुबारकबाद होने का इजहार करके इनके जानिब से फ्राहम करदा खिदमत की सताइश की। SDP అంటే సింగిల్ డోనర్ ప్లేటెడ్ మిషన్ను రెడ్ క్రాస్కి మనకు డొనేట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. మనందరికీ కూడా తెలుసు,
అంటే కరోనా టైంలో కావచ్చు, లేదా రీసెంట్గా మనం కొంతవరకు ఎప్పుడైతే మనకు రైనీ సీజన్ స్టార్ట్ అయిందో అప్పుడు చాలా ఎక్కువ వరకు డెంగీ కేసెస్ రావడం జరిగింది. ఆ సందర్భంగా మనకు ప్లేటెట్స్ యొక్క అంటే ఒక వ్యక్తికి ప్లేట్లెట్స్ తగ్గితే ఏమవుతుంది, మనకు ఆ వ్యక్తికి వెంటనే మనం ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా ఇవ్వాలనేది చాలామందికి తెలిసి ఉంటుంది. అయితే ఒకవేళ మనకు ఒక శరీరంలో ప్లేట్ తగ్గినాయి అంటే మనం వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం. కానీ ఎక్కడ దొరుకుతున్నాయని మనకు వెంటనే ఈవెన్ డాక్టర్స్ కూడా చాలా వరకు అందుబాటులో ఉండని సౌకర్యం ఇది. అట్లాంటప్పుడు మనకు ప్రాపర్గా ఫెసిలిటీ ఉంటేనే వారికి మనం కావాల్సిన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతాము. సో ఈరోజు మనకు ఇక్కడ నిజామాబాద్లో అందులో రెడ్ క్రాస్లో మనకి ఈ యొక్క సౌకర్యం రావడం చాలా. शहर के कलेक्ट्रेट में वाक़ श्री 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 नवा दुर्गा देवी मंदिर के मुजस्समे की तंसीबी तक़ारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद जारी। जिले निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में वाक़ श्री 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 नवा दुर्गा देवी मंदिर के मुजस्समे की तंसीबी तक़ारीब शानदार पैमाने पर जारी है। इसी तरह जिले के TNGOs कायदीन के ज़ेरे निगरानी में मुजस्समे की तंसीबी तक़ारीब 3 यौम तक शानदार पैमाने पर मुनक़िद किए जाने का जिले सदर आकुला किशन ने इजहार करते हुए कहा कि मुनक़िद होने वाले इस तक़रीब की आज दूसरे दिन भी तमाम मजहबी रस्म रिवाज को जोशो खरोश के साथ अदा किया गया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सरखबर। खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई के लिए हर वक्त TRS हुकूमत तैयार। आर्मू में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का PUC कमेटी चेयरमैन व आर्मू में मिले जीवन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। वो मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। शहर में मजीद शराब की दुकानों की तादाद में इजाफे के लिए महकमे आबकारी की जानिब से टेंडर जारी। 9 नवंबर आखिरी तारीख। 14 नवंबर यौम तालीम के मौके पर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की हयाती ज़िंदगी को आम करने के लिए हरकियाती क़ायद सैयद खैसर की जानिब से तहरीरी मुकाबलों का इनेकाद। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी व एडिशनल कलेक्टर व इंचार्ज बल्दिया कमिश्नर चित्रा मिश्रा ने दौरा करते हुए की हिम्मत अफजाई। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की सालाना जायजा इजलास में मेसो निजामाबाद अराकीन की शिरकत। वो मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। जुक्कल MLA हनुमान शिंदे ने 5 किलोमीटर पैदल चलते हुए सड़क की तामीरी कामों का लिया जायजा।